इंडियन लिंक रेडियो पर आप हैं चारुता के साथ और मैं हूँ एकता आपके साथ। चारुता ने जैसे आपको बताया था कि अभी कोई बहुत ही स्पेशल पर्सन हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मेरे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं ओसान एबिलिटी के सीईओ डॉक्टर उमेर शाहिब खान, जिनसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बातें आज मैं करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर उमेर, वेलकम टू इंडियन लिंक रेडियो। Good. Thank you, Ekta, for inviting me, and salam and namaste to everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, बिफोर वी बिगिन, लेट्स स्टार्ट इट ऑन अ लाइट नोट। मुझे ये बताइए कि इतने सारे काम के बीच में अपने आप को लाइट रखने के लिए आप क्या करते हैं? पहला सवाल मेरा। I think मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, गोल्फ खेलता हूँ, और इसके अलावा मैं कम्युनिटी में क्योंकि काफी इन्वॉल्व रहा हूँ, बचपन से हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व रही है। राइट। So community and welfare work is part of my hobby. So that's what I do to keep myself light and relax. Lovely. Let's talk about Osan now. Osan is in Sydney, Brisbane, Perth. So what is Osan? It has a full form, and what does it mean exactly? Actually, it's Osan is a acronym for my family members. So Omar Shahab is my name, and my wife and other family members. So wow. And the other idea behind is that because it says Osan, it's something we would Oz like Australian. Mm-hmm. So it's a mix of family members, acronyms, and an Australian company. How lovely is that? When was it started, and what was the idea behind starting Osan? I started this company about 4.5 years ago, and as I said earlier, that मैं और मेरी फैमिली और हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है कम्युनिटी वेलफेयर में और वॉलंटियर वर्क में. So I thought about what about doing a business which satisfies more needs, like I have a business at the same time I'm able to serve the community as well. So then I started this company 4.5 years ago, and I think it's fantastic work because not only we make some business out of it, but also we are able to serve the community at a larger scale. Dr. Omer, when we talk about Osan, there are so many services that you offer. There is aged care, there is disability housing, and other services as well. So, if you talk about all these different services, tell us more about them and what has been most challenging part for you. We provide, as you said, accommodation for disabled people, and also we do aged care. So disability means people up to age of 65, they come under NDIS, which is disability scheme, and people over 65, they come under aged care. तो उसमें हम accommodation भी provide करते हैं. इसके अलावा community participation, यानी जो लोग घरों में हैं, disabled लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, हम उनको बाहर लेके जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, पार्क के लिए, एक्सरसाइज के लिए या सिनेमा देखने के लिए. तो that's called community participation. इसके अलावा बहुत से ऐसे डिसेबल लोग हैं जिनको पर्सनल केयर चाहिए होती है, उनको घर में डोमेस्टिक असिस्टेंस चाहिए होती है, या उनको कोई स्किल डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए हमारा स्टाफ उनके घरों में जाता है. On top of accommodation and personal care and domestic assistance, we also provide mobility equipment. For example, people need wheelchair, कुछ लोगों को स्पेशल बेड्स चाहिए होते हैं और डिसेबिलिटी एड्स चाहिए होती हैं. So we have about 26 services. इसके अलावा बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको घर में होम मॉडिफिकेशन चाहिए होती है क्योंकि उनका बाथरूम इतना बड़ा नहीं होता, या उनके घर में सीढ़ियाँ होती हैं, तो they need some ramp done. So home modification is also an important part for our services. Right. And also, is there any service that is really challenging for you, or that takes a lot of your effort and also you are into it? Any service out of these? Yeah, I think that's a very important question. So what we don't realize nowadays that mental health is a very large issue around the world and also in Australia. Yeah. So हम specialize करते हैं mental health type of patients or clients में, and we provide accommodation for them. We take them out and we try to do social interaction for these people. लेकिन mental health जो field है और mental health के जो client होते हैं, they are very challenging, और everyone has different behavior and different risks and different reaction to what we provide. So it is the most challenging part of our job. लेकिन ये है कि इसमें satisfaction भी मिलती है कि we are able to make some difference in people's life.
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है सोसाइटी में कि हम इसको ना ओपनली डिस्कस नहीं करते। जैसे डिप्रेशन है या दूसरे ऑटिज्म है, तो उसमें लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते। तो मैं इनकरेज करूंगा कि लोगों को सामने आना चाहिए, ओपनली इस चीज को डिस्कस करना चाहिए, और हमें एज ए सोसाइटी उन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट्स द ओनली वे वी कैन make a difference in their life. We can improve their life, and we can improve the overall society as well. So, as you asked, mental health is the most challenging part of our job, but we are happy that we specialize in that field, and we are happy that we are making difference to people's life by serving them. Yeah. Dr. Umair, if we talk about, migrant communities here in Australia, या किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, आपको लगता है कि इन चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस की ज़रूरत है या ऑलरेडी अवेयरनेस है? व्हाट आर योर थॉट्स? जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की अबाउट 5 years ago, तो कुछ हमने सर्वे किए कि इसकी कहाँ जरूरत है, लोग उसके बारे में क्या जानते हैं। तो हमें पता ये चला कि तकरीबन 90% या 85% जो इंडियन कम्युनिटी है, सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटी है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल फॉर देम और फंडिंग विच आर अवेलेबल फॉर देम। तो मेरे ख्याल में हमें ये कैंपेन चलानी चाहिए। लोगों को पता होने चाहिए कि डिसेबल लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्या गवर्नमेंट ने फंडिंग दी हुई है, या बूढ़े लोगों के लिए क्या फंडिंग दी हुई है। तो एक तो अवेयरनेस का इश्यू है हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, स्पेशली माइग्रेंट कम्युनिटी में। और दूसरा जो इश्यू है वो हमारा कल्चरल इश्यू है। और उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि वी डील विद माइग्रेंट फैमिलीज ऑल द टाइम, और जब उनको पता चलता है कि देयर इज फंडिंग अवेलेबल फॉर देयर डिसेबल चाइल्ड और डिसेबल फैमिली मेंबर, वो उस फंडिंग को नहीं लेते और कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों का खुद ख्याल करेंगे, हमें ये फंडिंग नहीं लेनी चाहिए। या इसी तरह अगर हम किसी फैमिली को बताते हैं कि आपके माँ बाप की एज ज्यादा है और उनको हेल्प चाहिए और गवर्नमेंट की फंडिंग भी अवेलेबल है, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम जिस बैकग्राउंड से हम उनकी खिदमत खुद करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ कल्चरल इश्यू, और हमें इसको एड्रेस करना चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट की फंडिंग यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई शर्म या झिझक की बात नहीं है, बल्कि इससे आपकी अपनी लाइफ भी इम्प्रूव होगी और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल। और एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो अवेयरनेस इज वन पार्ट, बट ऑल्सो कल्चरल जो हमारे यहाँ जो कहते हैं ना झिझक है, हिंड्रेंस है, उसको भी दूर करना चाहिए। डॉक्टर उमेर, जैसे जिन सर्विसेज को आप एट ओसान ऑफर करते हैं, ये सारी सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो कुछ टाइम बाद आई थिंक ये सर्विसेज लेते लेते डॉक्टर जो है एक दोस्त जैसा बन जाता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। कोई बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी आप रिकॉल कर पा रहे हैं? इफ यू कैन जस्ट शेयर विद अस। हाँ, इसमें स्टोरीज तो बहुत हैं, लेकिन ये कि जैसे एक दो हमारे पास क्लाइंट है कि वो मिसाल पर वो टांगों से माजूर थे, दे वर डिसेबल फ्रॉम देयर लेग साइड, एंड उनके कोई फैमिली मेंबर भी नहीं था। तो शुरू में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं हर क्लाइंट से खुद मिलने जाता था। अब तो जाहिर है कंपनी क्योंकि काफी बड़ी हो चुकी है तो इसलिए हर एक से मिलना मुश्किल होता है। अभी भी मैं वैसे जाता हूँ, लेकिन ये कि उनकी फीडबैक लेने के लिए और ये देखने के लिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो शुरू में हर क्लाइंट से मैं खुद मिलने जाता था, तो बाज़ मरतबा ऐसे क्लाइंट मिले जो अकेले रह रहे हैं और उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, दे वर वेरी डिप्रेस्ड। और शुरू में इट वाज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग, लेकिन ये कि उसके बाद जब हमने कंटिन्यूस उनके साथ काम किया, उनसे दोस्ती भी डेवलप हो गई और फिर ये पता चला कि उनको क्या चीजें चाहिए। मिसाल तौर पर जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो अकेला रहता था और कोई फैमिली मेंबर नहीं था, तो उससे बात करके पता चला कि उसको शौक है कि उसका एक गार्डन हो, उसका वेजी पैक हो और उसमें उस लाइफ को एंजॉय करता है। तो वी वर एबल टू क्रिएट फ्यू गार्डन्स फॉर सच पीपल और उनके लिए वेजी पैचेस हमने उनके लिए क्रिएट किए और उससे उनकी जो मेंटल हेल्थ थी उसकी सिचुएशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट आई, उनकी फिजिकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आई। और अब उन लोगों का कहना है कि अब आप ही लोग हमारी फैमिली हैं। तो जब हम इस तरह की कमेंट मिलते हैं तो रियली हमें सेटिस्फेक्शन हासिल होती है कि वी वर एबल टू मेक अ डिफरेंस टू समवन्स लाइफ।
इसी तरह हमारी कम्युनिटी में और भी स्टोरीज हैं। मिसाल तौर पर हमारे एक जानने वाले हैं, वो 5 साल से कोशिश कर रहे थे कि किस तरह उनको एक डिसेबल स्कूटर मिल जाए, जिस तरह लोग स्कूटर पे नहीं जाते जी बूढ़े लोग वगैरह, हाँ. और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था और उनको पता नहीं था कि कैसे करना है। जब उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ तो ऑफ कोर्स बिकॉज वी नो द सिस्टम एंड वी नो हाउ टू हेल्प पीपल, वी वर एबल टू गेट द स्कूटर विद इन few weeks. Wow, how lovely is that? So these are stories which make us happy कि वाकई हम लोगों की कुछ खिदमत करने के काबिल हैं, और वाकई जब लोगों को पता चलता है तो उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज आती है, जो कि अच्छी चेंज आती है। तो स्टोरीज तो बहुत हैं, लेकिन ये कि जब भी अच्छी स्टोरी होती है, खुशी होती है कि हम कुछ करने के काबिल हैं और इससे लोगों की लाइफ में बेहतरी पैदा हो रही। राइट हमारे लिसनर्स डॉक्टर उमैर जो अभी सुन रहे हैं, हाउ कैन पीपल रीच आउट टू ओसान? आर देयर डिफरेंट वेज हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? Of course, they can reach out through our website, which is osanability.com.au, or they can call us on 1300-799-41, or they can write to us info@osanability.com.au. और इसके अलावा हम फेसबुक पर भी हैं, फेसबुक पे भी लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जब आप ओसान की वेबसाइट पर जाएंगे, जब मैं इनकी वेबसाइट पर गई तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ आपको दिखाई देगी कि जब भी आप इन्हें डायल करेंगे कोई आंसरिंग मशीन नहीं होगी, बल्कि एक रियल पर्सन आपसे बात करेगा। दिस इज सो टचिंग एंड सो नाइस। जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया तो जब हम कंपनीज को कॉल करते थे तो dial 1 for this, dial 2 for this, and it goes to the computer, which was quite annoying for a normal person. Imagine if a disabled person is trying to contact you. Imagine that if an old person is trying to talk to someone. और अगर वो कंप्यूटर पे वो बात चली जाती है तो बहुत उनकी लाइफ डिफिकल्ट होती है। तो एक चीज हमने शुरू से की कि जब भी कोई कॉल करता है वो रियल पर्सन उस कॉल को आंसर करता है, और दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड सम अदर कंपनीज। और इसके अलावा ये रियल पर्सन जो आपको टॉक करता है, ये 24 आवर सर्विस है। ये नहीं है कि 5 बजे के बाद बस आप की कॉल जो है कंप्यूटर पे चली जाएगी। तो 24 आवर्स वी हैव स्टाफ सिटिंग देयर आंसरिंग योर कॉल्स, डिस्कसिंग योर इश्यूज एंड हेल्पिंग यू। दैट्स लवली। डॉक्टर उमैर, जब इस तरह के अच्छे काम आप करते हैं तो जाहिर बात है दिल को एक बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, और ऐसे सुकून में आप म्यूज़िक सुनते हैं कभी रिलैक्स होने के लिए कि आज थोड़ा सुकून है, चलिए कुछ अच्छा सुना जाए? जी म्यूजिक तो बहुत अच्छी और रिलैक्सिंग चीज़ है कि वो कहते हैं ना, एक गाना है कि कौन है ऐसा जिसे फूलों से, गीतों से, पंछियों से प्यार ना हो। तो बिल्कुल म्यूजिक तो बहुत अच्छी और रिलैक्सिंग चीज़ है। क्या बात है। तो ज़रूर कोई गाने की फरमाइश अगर आप करना चाहेंगे, कोई गाना आप सुनना चाहेंगे, नया पुराना आपकी पसंद का? ये तो आपने मुझे ऑन स्पॉट कर दिया। मेरे ख्याल में एक गाना मुझे बहुत पसंद है, मतलब कुछ पुराना भी है, लेकिन वो है आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी आहा, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने चुना है। एंड ऑन स्पॉट ही देखिए ऐसे पसंदीदा चीजें निकल के आती हैं। बिल्कुल थैंक यू सो मच। आपने बड़ा पुराना गाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर उमैर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने लिसनर्स के साथ उनको कुछ बता सकूं, और अगर हम किसी किस्म का भी कोई खिदमत कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं। और एक पॉलिसी, हमारी फिलॉसफी ये भी है कि हम किसी की खिदमत करने के लिए, सर्विस देने के लिए ये डिपेंड नहीं करते कि उनके पास फंडिंग है या नहीं है। हमारी मिनिमम 10% जो इनकम है इस कंपनी की, वो वेलफेयर के लिए यूज होती है, ऑस्ट्रेलिया में और ओवरसीज। तो अगर लोगों के पास फंडिंग ना भी हो और किसी को जरूरत हो तो हम उनकी जरूर जितनी खिदमत कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। That's lovely. Thank you so much, Dr. Umair, and keep doing the good work. Thank you for inviting me.